Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now today we are going to solve some prelims related questions that will be based on environment and ecology. We have taken a lot of PYQs also, the questions that came in UPSC prelims earlier. What you need to do is to see the question very carefully, try to attempt it on your own. If you have done it earlier, it is good. If the question is new for you, try to attempt it very carefully, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. Okay, so let's start. The first question is, which of the following can be used as a raw material for the production of biofuels? Okay, यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से मटेरियल्स को यूज करके we can produce biofuels. Okay, the options given are: the first is cassava, second is damaged wheat grains, third is groundnut seeds, fourth is horse gram, fifth is rotten potatoes, and sixth is sugar beet. ठीक है, question came in UPSC prelims 2022. This is a PYQ. See the question very carefully, try to attempt it because the options are given. You can even use the option elimination method also. तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए एंड देन वी विल सी दी आंसर. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है 1, 2, 5 एंड 6. अगर आप नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2080 के हिसाब से अगर आप देखें, हियर आर सम रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल जनरेशन, जैसे कि मोलासेस, शुगर केन जूस, बायोमास इन फॉर्म ऑफ ग्रासेस, एग्रीकल्चर रेसिड्यू. ठीक है, एग्रीकल्चर के जो रेसिड्यूज होते हैं उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. शुगर कंटेनिंग मटेरियल लाइक शुगर बीट, स्वीट सोरगुम एटसेट्रा. ठीक है, शुगर स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे कॉर्न को बहुत यूज किया जाता है बायोफ्यूल क्रिएट करने में, कसावा है, रॉटन पोटैटोज एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो डैमेज फूड ग्रेन्स भी जो है, जो राइसेस जो पब्लिक यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए जो है वो फिजिबल नहीं है, उसको भी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अनुसार जो है इट कैन बी डाइवर्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स एंड स्पेशली इथेनॉल. ठीक है, और ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंटायर पॉलिसी में कहीं भी इसका मेंशन नहीं है कि वी कैन यूज द ग्राउंडनट सीड्स एंड हॉर्स ग्राम टू प्रोड्यूस इथेनॉल. ऑल्दो कुछ ना कुछ कभी ना कभी यूज हो जाता है. ठीक है, कभी ना कभी बायोफ्यूल बनाने में किसी तरह से इसको सब्सिडियरी की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टिल बिकॉज द पॉलिसी में इसको, हमारे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में ये कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पर से जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 1, 2, 5 एंड 6 ओनली. तो option 3 groundnut seed and 4th horse gram is not used for the production of biofuels. Generally इस तरह के questions when you see in UPSC we go for all of them options, जैसे option D है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. but sometimes UPSC इस तरह के question set करता है जहां पर अगर आप all of them में जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी. ठीक है, चलिए moving on to the next question. In India the use of carbofuran, methyl parathion phorate and triazophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as, the options given are: A, pesticides in agriculture, B, preservatives in processed foods, C, fruit ripening agents, or D, moisturizing agents in cosmetics. Okay, this question is again a PYQ. This question came in prelims 2019. So see the question very carefully, try to answer this question, try to solve this question based on the information that you have. You must have read about these chemicals somewhere in news, in current affairs, or you may say in even in your textbooks. तो उसको याद करने का कोशिश करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर. नाउ दीज केमिकल्स हैव बीन बैंड बिकॉज 2018 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें पेस्टिसाइड प्रोहिबिशन ऑर्डर 2018 के अंदर कुछ केमिकल्स को बैन किया था बिकॉज दिस वॉज लीडिंग टू पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, और जिसके वजह से बहुत फार्मर डेथ हो रहा था. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कुछ नोटिफाई किया था कुछ केमिकल्स को अंडर दिस प्रोहिबिशन ऑर्डर 2018
जिसके द्वारा इनका यूसेज को बैन किया गया था इंडिया में। दीज केमिकल्स वर विनोमाइल, कार्बाराइल, डियाजिनोन, फेनारिमोल, ठीक है, और आप देखेंगे तो मिथाइल पैराथीन को भी आप यहां पर देखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द केमिकल्स ऑल्सो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये केमिकल्स क्योंकि न्यूज में थे तो आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे ही आप न्यूज में देखते हैं खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इफ इट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, इफ इट इज रिलेटेड टू पेस्टिसाइड, इफ इट इज रिलेटेड टू वीडीसाइड, तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इनके जो केमिकल्स होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर बेस्ड यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज excessive release of pollutant carbon monoxide into the air may produce a condition in which oxygen supply in the human body decreases. What causes this condition? This is a relatively older question. You may say it came in 2010 UPSC prelims. So you have to answer this question correctly. The options given are A. When inhaled into the human body, CO is converted into CO2. B. The inhaled CO has much higher affinity for hemoglobin as compared to oxygen. C. The inhaled carbon monoxide destroys the chemical structure of hemoglobin. And D. The inhaled carbon monoxide adversely affects the respiratory center in the brain. ठीक है, तो आपको बताना है कि excessive use of pollutant carbon monoxide into air may produce a condition in which oxygen supply in the human body decreases. और इसका कौन सा सही रीजन है, ऐसा क्या कंडीशन जो है वो कार्बन मोनोक्साइड आपके बॉडी के अंदर फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है द इनहेल्ड कार्बन मोनोक्साइड हैज मच हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, टू बेसिकली कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। ठीक है, अब होता क्या है कि कार्बन मोनोक्साइड अगर इन द जो एयर वी ब्रीथ, इफ वी ब्रीथ कार्बन मोनोक्साइड, उसका अगर कंटेंट ज्यादा होता है तो कार्बन मोनोक्साइड जो एक तरह से कंपाउंड बनाता है हेमोग्लोबिन के साथ, दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू व्हाट हेमोग्लोबिन फॉर्म्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो बनाता है उससे बहुत ज्यादा जो है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो बनता है, दैट इज फाउंड बाय कार्बन मोनोक्साइड, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और उसको ब्रेक डाउन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है कि वंस हेमोग्लोबिन गेट्स बॉन्डेड विद अ कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल, तो उसके बाद आपके पास फ्री हेमोग्लोबिन्स कम बचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप ऑक्सीजन जो कैरी हो रहे थे आपके बहुत अच्छे से लंग्स से थ्रू आपके सेल्स, वो क्योंकि हेमोग्लोबिन का काउंट घटने लगता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन्स आर बॉन्डेड टू कार्बन मोनोक्साइड एंड दे फॉर्म मोर स्टेबल, तो आपके पास कम हेमोग्लोबिन बचता है, इसके वजह से कम ऑक्सीजन कैरी होता है और इसके वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगता है। ठीक है, दिस हैम्पर्स द ट्रांसपोर्टेशन of oxygen in the blood, leading to oxygen deprivation throughout the body and negatively affecting its functioning. ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है सारा चीज, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने जो ग्लूकोज जो आपके यहाँ जाता है फिर वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे आपको एनर्जी मिलता है, तो आप पूरी तरह से आपको फटीग्स होने लगेगा एंड डिफरेंट आपको हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे इफ यू ब्रीथ मतलब कार्बन मोनोक्साइड का अगर आप कंटेंट आपके ब्रीदिंग एयर में ज्यादा है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोस्पिरिलम। ठीक है, रोडोस्पिरिलम इज अ नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सामने में मैच किया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया जो है इसमें करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, उनके नेचर के, उनका क्या जो जिन पे उनका क्वालिटी दिया हुआ है, क्या वो उससे सही मैच्ड है या नहीं है। ठीक है, तो रोडोस्पिरिलम के सामने लिखा हुआ है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द सेकंड इज राइजोबियम, इसके सामने लिखा हुआ है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एंड एनाबेना इज अ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। द ऑप्शंस आर सिमिलर टू व्हाट यू सॉ इन प्रीलिम्स 2023। द ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। ठीक है, नाउ इफ you'll categorize the difficulty of this question, because the 3 questions that we saw earlier basically was PYQ, so there is no need to categorize the difficulty of those questions because we have already seen those questions, और उस तरह के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड हम लोग अपनी तैयारी को रखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज यू नीड अ लिटिल बिट इन डिटेल इंफॉर्मेशन कि ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, लेकिन इसका नेचर क्या है इसके बारे में जब आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है इन साइंस एंड टेक, या फिर आप बोल सकते हैं इन इन्वायरमेंट ऑल्सो, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली 1।
The third option, the Anabaena is a cyanobacteria, is the only correctly matched option. इसके पहले जो 1 है and 2 is incorrectly matched. चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में. आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में देयर इज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन दैट नाइट्रोजन इज नॉट इन अ, आप बोल सकते हैं इन अ स्टेट दैट इट कैन बी यूज बाय प्लांट्स डायरेक्टली. तो इसके लिए क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया और अदर कंपाउंड्स दैट इज टेकन अप बाय प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर ग्रोथ. ठीक है, तो यहां पर जो है बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का यूज होता है. अब इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. जैसे अगर आप बोलेंगे तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं. अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एक टाइप है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, जैसे इसमें है, और आप इसको बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरियाज होते हैं. एग्जांपल एरोबिक एजोबैक्टर. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो बेजिमिकिया, एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पिरिलम. ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ नॉन सिम्बायोटिक, जबकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था इट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड. ठीक है, तो पहला तो हमने देख लिया कि इनकरेक्टली मैच. अगर हम दूसरा देखें, कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं. इसमें होता है राइजोबियम. ठीक है, लिविंग इन एसोसिएशन विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड नॉन लेग्यूमिनस रूट्स नोड्यूल प्लांट्स. ठीक है, और सब होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं. ये बेसिकली क्या करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं इन ओशंस. एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पिरुलिना. ठीक है, इस तरह के जो है दीज आर ऑल साइनोबैक्टीरियाज. तो यहां पर अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते थे. एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सम वेरी इन डेप्थ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट. अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और इफ यू हैव रेड द नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बैक्टीरियाज के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एटलीस्ट आप एक दो से जो है एलिमिनेट कर सकते थे कि यहां पर जो है ये दोनों इनकरेक्टली मैच है, तो भी आप एक अंदाज लगा सकते थे. यू कुड हैव रीच टू 50% श्योरिटी. उससे ज्यादा श्योरिटी आप प्रीलिम्स में गेन नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके एक ऑप्शन करेक्ट मार्क करना रहता है, लेकिन स्टिल अगर आपका इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है, आपने काफी अच्छे से पढ़ा है अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड यू कुड हैव मार्क्ड द राइट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements about the forest dweller under Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि क्या ये इस जो हमारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, जिसका अगर आप बोलेंगे तो एक्सपैंडेड वर्जन है इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी बोलते हैं, क्या इसके अंदर ये आते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज community rights or rights over common property resources of the communities in addition to their individual rights. Okay, the statement 2 is right of ownership, access to collect, use and dispose of minus forest produce, and the third is rights for the conversion of pattas or leases issued by any local authority or any state governments on the forest land. ठीक है, the options given are, how many of the statements given above are correct? The options are only 1, only 2, all 3 or none of the statements are included in the Forest Right Act 2006. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसके बाद we will discuss the right answer. तो इसका सही आंसर है all 3 are included in the Forest Right Act. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं. देखिए ये जो था ना, this was a very you may say watershed movement. जब ये एक्ट जो लाया गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट, फर्स्ट टाइम जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, द पीपल दोज वर लिविंग इन द इनसाइड द फॉरेस्ट एरियाज, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना कि वो, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट को जब प्रोटेक्टेड एरिया के जैसा ट्रीट करने लगे बाय द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो वहां पर रहने वाले लोग थे, उनके राइट्स को बहुत छीन लिया गया. इसके बाद बहुत ज्यादा मूवमेंट चला और फाइनली फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो था ये रिकॉग्नाइज किया कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको कुछ राइट मिलना चाहिए, फॉरेस्ट राइट मिलना चाहिए, और यही सब जो है वो इनके इस एक्ट के विद इन दिया हुआ है. अब यहां पर क्या है, देखिए क्या है, यहां पर दी एक्ट वाज इनैक्टेड टू असर्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर द फॉरेस्ट लैंड ओवर विच दे वर ट्रेडिशनली डिपेंडेंट. ठीक है, सारे फीचर्स को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो देखिए यहां क्या क्या आपको दिया हुआ है. फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेज and secures community right or right over common property resources of the communities in addition to their individual rights. Individual rights के अलावा कुछ as a community जो रह रहे हैं, वो भी जो rights हैं उनके, उसको भी यहाँ पर recognize किया जाता है. तो अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि the Forest Right Act 2006 only recognizes individual rights,
तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये कम्युनिटी राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। यहां पर आप सारे स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, यहां अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहां पर देखिए द सेकंड स्टेटमेंट वाज राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which the communities have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। and अगर इसके बाद हम लोग देखें जो नेक्स्ट है दैट इज राइट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ पट्टास। देखिए ये भी आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ था, राइट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पट्टास और लीजेस और ग्रांट्स इशूड बाय एनी लोकल अथॉरिटी और एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड्स टू टाइटल्स, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये सारे चीज जो है दीज आर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके अलावा जो बाकी भी प्रोविजंस है उसको भी आप अच्छे से पढ़िए, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट में वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये इस पे भी बेस्ड, क्योंकि दिस वाज वेरी मच इन न्यूज बिकॉज इन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है बहुत टाइम पे एक केस चल रहा था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो ये काफी न्यूज में था इन 2019, 2020, 21 में। लेकिन यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इवन इन प्रीलिम्स 2024, ठीक है। यूपीएससी 2-3-4 साल पुराना न्यूज पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और ऐसे भी ऑब्वियसली दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑलरेडी नो दैट इन्वायरमेंट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, बिकॉज आपको पता है प्रीलिम्स इज अ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड दी फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल्सो। इसी कारण आपको जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसमें फॉरेस्ट एक्ट पे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, मेनी वर पीवाईक्यूज एंड कुछ क्वेश्चंस हमने देखा जो कि प्रोबेबल हो सकते हैं, फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस ऑन ए डेली बेसिस, बहुत ज्यादा नहीं करना है बिकॉज अभी जो टाइम है दैट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेंस। दोज हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स वो तो कर ही रहे होंगे, जो नहीं क्वालिफाई किए still use this time to prepare for you may say mains, GS and also optional essays। इस तरह के टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, बट प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए कि आप फ्लो में रहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कनेक्ट आपका टूट जाए। तो इस तरह से आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस इज मोर देन एनफ टू कीप यू ऑन ट्रैक, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि रोज दिन 50 ऑब्जेक्टिव्स आप लगाइए उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, इंफॉर्मेशन बेस को इंक्रीज करते रहिए, कोई भी टॉपिक को देखिए तो उसको थोड़ा गूगल सर्च करिए, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करिए। सारे इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो है खुद सर्च करके निकालना पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।